Good morning to you all. Everyone mute your phone and on your video every time. Okay, so we have doing chapter 13. Yeah, previous class I was told you to do page number 123 in your book. I think all of you have completed it. Okay. Okay. Everyone open your book. Open your book and I'm going to tell the answer. So all of you please match your answer. Page number 123. All of you open your book. Take the correct option. Number 1. India does not share border with its Afghanistan. Just match with your answer. India does not share borders with Afghanistan. All of you please mute your phone. जिन लोगों ने कर लिया है वो अपने आंसर को मैच कर लेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर लेंगे. Good morning. Everyone mute your phone every time. Yes. Which of the following is our southern neighbor at sea? Sea में southern neighbor हमारा कौन है? And it's Sri Lanka. Yes, Sri Lanka. Okay. Which of the following is our southern neighbor at Sri Lanka? It's Sri Lanka. किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है. मैं बता रही हूं, आप लोगों ने अगर कर लिया है तो आप उसको मैच कर लो. कुछ गलत है तो उसको करेक्ट कर लो और जिन्होंने नहीं किया है वो अपना कर लेंगे बुक में. नेक्स्ट इज द उर्दू. फर्स्ट इज अफगानिस्तान. Second is Sri Lanka. Number 3, Urdu script is known as Nastaliq. Yes. Does not share with है. ठीक से देखो. Does not share with. मेरे बुक. Number 1, tick the correct option. Tick the correct option. Yes. किसी को देखो. Okay, just everyone mute your phone and listen carefully. देखो बुक का क्या है कि कुछ बुक्स में आप कुछ बुक्स जो है अपग्रेड किए हुए हैं तो किसी को न्यू बुक मिला हुआ है और किसी को ओल्ड बुक पुराना बुक ही मिला हुआ है जो अपग्रेड नहीं किया हुआ है. तो मेरे पास जो बुक है वो भी आई थिंक पुरानी ही बुक है मेरे पास, वो भी अपग्रेड नहीं किया हुआ है. उसमें ये क्वेश्चन है. इंडिया नंबर 1, इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर्स विथ इट्स अफगानिस्तान. अगर किसी के बुक में ये क्वेश्चन नहीं है तो अपने फोन को अनम्यूट करिए और क्वेश्चन को पढ़िए, सिर्फ कोई एक. यस. इंडिया होगा इसका आंसर. इसका आंसर इंडिया होगा. ठीक है. नंबर टू में सबका सेम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर साउदर्न नेबर एट सी? यस, श्रीलंका. ठीक है. नंबर 3, उर्दू स्क्रिप्ट इज नोन एज नेस्टालिक. सबके पास सबका सेम है. करेक्ट कीजिए उसको. गुड.
कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है इसके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको और अच्छा ही है, दो तरह का क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है ना। नेक्स्ट इज विच cuisine influenced the Nepalese cuisine? It's Tibbet Chinese. Number C, Tibetan Chinese. Yes. Number three, C. Hamfu is a traditional dress of men in China. Yes, China. ठीक है। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, करेक्ट कीजिए अपने अपने बुक में जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। यस, एवरीवन म्यूट योर फोन, अदरवाइज क्लास इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब। किसी को कुछ कहना होगा, आप अपना हैंड रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विथ डैश इन द नॉर्थ वेस्ट। इट्स पाकिस्तान। India shares boundaries with Pakistan in the northwest. Next है, India believes in the policy of dash. It's peace. India believes in the policy of peace. As you know that, all of you know that India always believe in peace. So India believes in the policy of peace. Number three, all of you write down in your book. Next is lungi blouse is worn in South Dash and Sri Lanka. South India and Sri Lanka. Lungi blouse in worn in South India and Sri Lanka. Okay. Kshitij Raj, have you completed it? Kshitij Raj, unmute your phone. Have you completed it? Okay. Yes, the next is Dash is an important part of Sri Lankan cuisine. It's dosa. Dosa is an important part of Sri Lankan cuisine. Next is the salwar kameez is the traditional dress of Pakistani men. Completed everyone? Salwar kameez is the traditional dress of Pakistani men. Okay, now next is the match the following. जिन्होंने कर लिया है वो मैच करेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी अपने बुक में इस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग। सेकंड नंबर, peace. India believes in the policy of peace. Number 3, India and Sri Lanka. India. Number 4, dosa. And number 5, salwar kameez. Okay, completed. Next is the match the following.
हिंदी देवनागरी, ठीक है, हिंदी देवनागरी, उर्दू नेस्टालिक, लौंगी इट्स लुंगी या लौंगी, म्यांमार, मेखला चादर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हम्फो चाइना। completed? Now all of you open your copy. हाँ, हाँ, ओपन योर कॉपी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे हम लोग करते हैं, चैप्टर का नंबर लिखेंगे, चैप्टर का नेम लिखेंगे, एक पेज छोड़ देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एक पिक्चर ड्रॉ करने का। वो होगा आज का आपका होमवर्क, उसको आप कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है? गुड। जैसे हम लोग करते हैं, चैप्टर का नेम देंगे, चैप्टर नंबर देंगे, आज का डेट देंगे और एक पेज छोड़ देंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पिक्चर आप बना सकते हैं। और उसके बाद हेडिंग डालेंगे आंसर ब्रीफली एंड क्वेश्चन नंबर 1। आंसर ब्रीफली एंड क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. Name India's southern neighbor in the sea. Question number 1. Name India's southern neighbor in the sea. आप सबको मैं देख पा रही हूं, सो प्लीज डू योर वर्क। आप क्या कर रहे हैं, सब पे मेरी नजर है। Only do your work. I think all of you have written question. Write the answer. Sri Lanka is the India's southern neighbor in the sea. Sri Lanka is India's southern neighbor in the sea. Sri Lanka is India's southern neighbor in the sea. हाँ, फर्स्ट का आंसर इतना ही है। आंसर ब्रीफली, ये एक एक लाइन का आंसर ही होगा। ठीक है, आंसर ब्रीफली मतलब शॉर्ट करके आंसर लिखना है, छोटा आंसर होगा इसका। Question number 1. Name India's southern neighbor in the sea.
Sri Lanka is India's southern neighbor in the sea. Completed. Now question number 2. Which language is known as the mother of all languages? Which language is known as the mother of all languages? It's Sanskrit. Sanskrit is known Sanskrit is known as the mother of all languages. Sanskrit is known as the mother of all languages. Sanskrit is known as the mother of all languages. Arpita, mute your phone. Arpita, mute your phone. Good. Okay. Sanskrit is known as the mother of all languages. Sri Lanka is India's southern neighbor in the sea. Number 1, Sri Lanka is India's southern neighbor in the sea, and number 2, Sanskrit is known as the mother of all languages. Now question number 3. How do you know that India believed in the policy of peace since olden times? Question number 3. How do you know that India believed in the policy of peace since olden times? How do you know that India believed in the policy of peace since olden time? इंडिया ऑलवेज मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप. आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए. इंडिया ऑलवेज मेंटेन इंडिया ऑलवेज मेंटेन. इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, इसको मैं लिख करके बाद में आपको क्लिक करके फोटो क्लिक करके सेंड भी कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में. अभी जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए. इंडिया ऑलवेज मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस
with our neighboring. India always maintain friendly relations with our neighboring as well as far away countries. India always maintain आप लोगों को ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, मैं फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी, फिर आप लोग लिख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, जो कर पाएंगे कर लीजिए और जिससे नहीं हो पा रहा है वो जगह छोड़ देंगे। मैं फोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से लिख लीजिएगा, ठीक है। विथ आवर maintain friendly relations with our neighboring. Maintain friendly relations with our neighboring as well as far away countries. Far away countries. History proves that India has never attacked any country. History proves that India has never attacked. वही बोल रही हूँ, हिस्ट्री प्रूव्स दैट इंडिया हैज never attack any country. It always, it always, it always believe any country. It always solves, it always solves mutual differences through peaceful means. It always solves mutual differences through peaceful means. आप लोग प्लीज उसके लिए जगह जगह छोड़ दे, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2-3 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। टाइम ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। मैं इसको आपको आंसर लिख के फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी, फिर आप वहां से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, उसमें हो जाएगा। Question number 4. Mention two cities of India where Urdu is widely spoken. Lucknow and Hyderabad. Mention two cities of India where Urdu is widely spoken. Question number 4. And the answer is Lucknow and Hyderabad. लखनऊ का स्पेलिंग LUCKNOW। हैदराबाद।
HYDERABAD, हैदराबाद। अगर आप लोग को लखनऊ और हैदराबाद का स्पेलिंग याद नहीं है तो इट्स वेरी शेम ऑन यू। याद है, बहुत अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है वो पूरे स्टेट्स का स्पेलिंग याद करेंगे। हैदराबाद, HYDERABAD, हैदराबाद। क्लास 5 में पढ़ रहे हैं और स्टेट्स का स्पेलिंग याद नहीं है। हाँ, फुल सेंटेंस लिख सकते हैं। टू सिटीज ऑफ इंडिया वेयर उर्दू इज वाइडली स्पोकन आर लखनऊ एंड हैदराबाद। The two cities of India where Urdu is widely spoken are Lucknow and Hyderabad. हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, सिंपली लखनऊ एंड हैदराबाद भी लिख सकते हैं। नहीं। Question number 5. I think everyone completed question number 4. Now, question number 5. Question number 5. Draw out one similarity and one differences between Hindi and Urdu. Open your book and in page number 120. देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू हेडिंग दिया हुआ है, डिफरेंसेस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू इन पेज नंबर 120। ठीक है, हाँ, लास्ट पैराग्राफ, डिफरेंसेस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू। तो यहां से आपको डिफरेंस मिल गया। हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। उर्दू इज रिटन राइट टू लेफ्ट इन पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट कॉल्ड नेस्टैलिक। ठीक है। यहाँ पर आपको उसके बाद, लेकिन पहले आपको सिमिलैरिटी लिखना है और उसके बाद डिफरेंसेस लिखना है ना। तो सिमिलैरिटी होगा बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, सिमिलैरिटी होगा बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। ये भी आपका लिखा हुआ पेज नंबर 120। देखिए, सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के नीचे वाले लाइन में देखो, बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, ये हो गया सिमिलैरिटी। बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत, ये हो गया सिमिलैरिटी। एंड डिफरेंसेस हो गया, पहले सिमिलैरिटी लिखेंगे और डैश देंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिखेंगे बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, समझ। नहीं नहीं नहीं, सिमिलैरिटी लिखिए और डैश की डैश करिए। सिमिलैरिटी, नहीं, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। सिमिलैरिटी लिखे। ठीक है, अब यहां लिखेंगे बोथ उर्दू एंड हिंदी। दिख रहा है सबको? अब इस ये पूरा सेंटेंस लिखिए, बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट, जब ये सिमिलैरिटी हो जाएगा फिर वहां लिखेंगे डिफरेंसेस। डिफरेंस लिखेंगे, उसके बाद डैश देंगे
और उसके बाद लिखेंगे हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे करके डिफरेंस लिखेंगे, डैश देंगे और उसके बाद हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the Devanagari script and Urdu is written right to left in Persian Arabic script called Nastaliq. दोनों लिखना है। यस, डिफरेंस बताएंगे ना उर्दू और हिंदी का, ये सिमिलैरिटी बता दिए और ये डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। यस, evolved from Sanskrit, both Urdu and Hindi evolved from Sanskrit, ये सिमिलैरिटी हो जाएगा। और डिफरेंसेस होगा, हिंदी इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, उर्दू इज रिटन राइट टू लेफ्ट इन द पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? ओके, टाइम ओवर होने वाला है, सो डू